اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات، انتہائی رنج و الم اور شکستہ دل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ یقیناً کل عاشور کا دن تھا اور جو عظیم فاجعہ اور حادثہ رونما ہوا وہ اگرچہ ہماری قوم کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، لیکن بہرحال انتہا سے زیادہ دلدوز سانحہ تھا جو ہمیں ایک مرتبہ پھر کربلا کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ کربلا ہمارے وجود میں سموئی ہوئی ہے اور یہ نعرہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہے، کل یوم عاشوراء بکل ارض کربلا۔ ہر دن عاشور ہے اور ہر سرزمین کربلا ہے، اور امام مظلوم کے جتنے ماتمدار ہیں، جتنے عزادار ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے حسین کا غم منانے والے ہیں، یہ سب کے سب انصار حسینی ہیں، ناصران امام مظلوم ہیں۔ اس میں مبالغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی چند کلمات اور چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس بات کو یاد رکھیے اور اس حقیقت کو ذہن میں محفوظ رکھیے کہ کل جو یہ سانحہ یہاں پیش آیا ہے یہ پہلا سانحہ نہیں ہے۔ ظلم و بربریت کا اور تشدد و جارحیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس سرزمین پر اور آپ کے اس محلے میں رونما ہوا۔ میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، بزرگوں نے بھی سابق کے واقعات بیان کیے ہیں، اور نسلاً بعد نسلیں ہم سب کے سب ان حالات سے دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں جن حالات سے کل ماضی میں ہمارے بزرگ دوچار ہوئے تھے۔ مجھے اس عظیم حادثے اور اس عظیم سانحے کی اطلاع کافی تاخیر سے ملی، مغرب سے کچھ پہلے، اور وہ بھی 15 سال کے ایک بچے کے ذریعے جس نے صحیح طور پہ ترجمانی نہیں کی، اور میں اس واقعے کی تہ اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے علاوہ شام غریبہ تھی، دیگر مصروفیات تھی، ورنہ میں کل ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں اور پورے وجود سے اس غم میں، اس حادثے کے رد عمل کے طور پہ آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، یہ کام کیا ہے، حقیقتاً وہ کام ایک منظم سازش کے تحت ہوا ہے۔ اچانک اور اتفاقیہ کوئی واقعہ نہیں، جب راستے طے ہیں اور مشخص کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے اور اسٹے بھی موجود ہے، دوسرے بھی قوانین جو عمومیت رکھتے ہیں امن اور امان کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک فرقے کے گروہ کے کچھ لوگ تعزیے لا کے رکھتے ہیں اور اس راستے سے عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہزاروں ہزار کی تعداد میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور پتھر برسایا جاتا ہے، سنگ بارانی کی جاتی ہے،
अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हें ये ख़बर नहीं, ये इत्तला नहीं कि हम मुख्तसर सी तादाद में थे, लेकिन ये सब के सब जिन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे ये करबला वाले। आशूर का दिन था, आशूर के दिन फातिमा के लाल पे पत्थर किन लोगों ने बरसाए थे? यकीनन ज़ाहिरी तौर पे वो भी अपने को मुसलमान कहते थे, उनके भी पेशानी पे सजदे का निशान था, उनके यहाँ भी नमाज पढ़ने वाले दिखाई देते थे, लेकिन हकीकतन इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, इस्लाम से उनका कोई रब्त नहीं था। ये सब के सब मुशरिकीन के, कुफ़ार के और दुश्मनाने अहले बैत के गरोह से ताल्लुक़ रखते थे। चुनांचे वो लोग कि जिन्होंने कल ये काम किया, ताज़िए ला के रखे और उसके बाद उन्होंने पत्थर बरसाए, अज़ादारान इमाम मज़लूम को अपनी जारहियत का, अपने जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया। हकीकतन उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उलट दिए, उन्होंने अपने चेहरों को पहचानवा दिया है। हम इस बनारस में लगातार उलमाए अहले सुन्नत के साथ मुसलसल इस कोशिश में हैं कि शहर में अमन व अमान का और इत्तेहाद का माहौल कायम रहे, तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पे रहें। यकीनन मुसलमानों से हमारा इत्तेहाद का नारा है, लेकिन मुनाफिकीन से इत्तेहाद का कोई नारा नहीं है। दुश्मनाने अहले बैत से इत्तेहाद है, अपने कांधे पे ताज़िया रख के लाएं और चाहे इमाम हुसैन का नाम अपनी ज़बान पे लें। हकीकतन इन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया है कि ये यजीदी हैं, ये इब्न ज़ियाद के गरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे साथ के गरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, ये शिम्र के गरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हमें दिल आज़ुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर करबला का जोश और करबला वालों का हौसला होना चाहिए। हम सिर्फ मातम नहीं करते हैं, सिर्फ या हुसैन ज़बान से नहीं कहते हैं, बल्कि हमारी ये कोशिश है कि हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी रफ्तार से, अपनी गुफ्तार से, अपने रहन सहन से, हर एतबार से ज़माने को हुसैनी बनकर दिखाएं। इमाम मज़लूम का पैगाम है कि हमें जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना है, चाहे जुल्म एक फ़र्द की जानिब से हो या एक गरोह की जानिब से हो या एक हुकूमत और वक्त की सबसे बड़ी ताकत की जानिब से हो। हमें जुल्म के सामने न कभी झुकना है, न कभी सर झुकाना है। कल जो हादसा पेश आया उसमें जो अफसोसनाक तरीन बात थी वो ये कि शहर की इंतज़ामिया उसने पुलिस के एक दस्ते को मुअय्यन किया था जो जुलूस में अमन व अमान को बरकरार रखे। वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए पुलिस वाले नहीं भेजे जाते हैं, इसलिए नहीं भेजे जाते हैं कि वो यहाँ आएँ और खा के खड़े होकर सिर्फ खैनियाँ खाएँ, चाय पिएँ और फिर वापस चले जाएँ। नहीं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगर किसी गरोह की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से, किसी दूसरे सियासी गरोह की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो मजहबी हो, मजहबी नौयत का भी है, समाजी नौयत का भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। फौरी तौर पे उनकी जिम्मेदारी थी कि फ़ोर्स को मदद के लिए बुलाया जाता, लेकिन फ़ोर्स काफ़ी ताख़ीर से आई। ये भी उसी साजिश का, मैंने अर्ज़ किया कि जो कुछ भी हुआ है ये मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है, और चूँकि इंतज़ामिया ने, पुलिस वालों ने इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की, तो ये खामोशी हकीकतन खामोशी नहीं है, बल्कि उस शिद्दत पसंद और जालिम गरोह का साथ देना है। ये क्यों साथ दे रहे हैं, इनका उनसे क्या फ़ायदा है, इनसे माली फ़ायदा इनको हासिल हो रहा है, सियासी फ़ायदा हासिल हो रहा है या किसी और तरह का फ़ायदा, ये जानें। लेकिन हकीकतन बग़ैर फ़ायदे के खामोश रहने की बात समझ में नहीं आती। मैं शहर की इंतज़ामिया से और मुल्क के आला हुक्काम से और अपने इस सूबे के तमाम हुक्काम और वज़रा से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि फ़ौरन पुलिस के इस गरोह के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, इसलिए कि ये खामोश तमाशाई बने रहे। बल्कि जब इन्होंने देखा, मैंने इस चीज़ को अभी उसमें देखा वीडियो में
जब इन्होंने देखा कि अब हमारी तरफ रुख हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम जख्मी हो जाए, तो उन्होंने भी भगदड़ मचा दी, भागना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं इंतज़ामिया, इसको कहते हैं पुलिस वाले। अजीज़ान मोहतरम, पुलिस वालों ने खुल के उनका साथ दिया है, हम उनकी मजम्मत करते हैं और इन सब की बरतरफ़ी का मुतालबा करते हैं। और ये सारे के सारे दुश्मनान अज़ा और दुश्मनान शीयत और दुश्मनान इमाम मज़लूम, ये सब के सब जो यजीदी शक्ल में थे पहचाने गए हैं, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इन सब को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। इसलिए कि ये वाक़या रोज़ आना जो रूनुमा होता जा रहा है, अब हमारे जज्बात बेदार होते चले जा रहे हैं। अब हम खामोशी से घरों में बैठकर तमाशाई बने नहीं रहेंगे। अब करबला हमें आवाज़ दे रही है, इमाम मज़लूम का इस्तिग़ासा फ़ज़ा में आज भी गूंज रहा है, इमाम की आवाज़ फ़ज़ा में मौजूद है। हल मिन नासिरिन यंसुरुनी, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीथुनी, हल मिन दाफ़िन यदुफ़्फ़ु अन्हु। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरी नुसरत करने वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम का ये इस्तिग़ासा फ़ज़ा में गूंज रहा और आज भी हमारे कानों में पहुँच रहा है। लिहाजा हमें सिर्फ रस्मी तौर पे लब्बैक या हुसैन नहीं कहना है, बल्कि अपने पूरे वजूद से, दिल की गहराई से लब्बैक या हुसैन कहना है। इस तरह से लब्बैक या हुसैन कहना है कि आवाज़ ज़ालिमों के महलों को भी हिला के रख दे और ये आवाज़ ज़मीन पे बुलंद हो, आसमान तक जाए। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। यकीन रखिए कि आप अपनी पेशानियों पर इमाम हुसैन के नाम की काली पट्टी बांधकर लब्बैक या हुसैन के नारे के साथ निकलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और इंशाअल्लाह इस झगड़े में, इस फसाद में, जिसकी बुनियाद बहुत पहले रखी गई थी और हर दूसरे तीसरे साल ये ताज़ा होता जा रहा है, आखिरी कामयाबी आपको मिलने वाली है, आखिरी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है। लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ तमाम उन लोगों से कि जो तख्ते हुकूमत पे बैठे हुए हैं और अमन व आश्ती की बात करते हैं, इंसाफ पसंदी की बात करते हैं, हुकूक़ बशर की बात करते हैं, उन सब से मुतालबा करता हूँ कि जितने के जितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, इन सब का माली ताउन किया जाए और इनके दुश्मनों को गिरफ़्तार किया जाए। इसलिए कि ये किसी एक को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि पूरे मिशन को नुकसान पहुंचाने आए थे और पूरी हमारे मज़हब के ऊपर उन्होंने हमला किया था, हमारे दीन पर हमला किया था और हम इस चीज़ को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चुनांचे तमाम मुजरिमीन को एक एक करके गिरफ़्तार किया जाए और जब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और इसी एहतजाज के तौर पर आज की मजलिस आज़ा और कल की मजलिस आज़ा मुलतवी रखी गई है और ये सिलसिला मज़ीद भी आगे बढ़ सकता है। लिहाजा दुश्मन इसको हल्के में न लें, दुश्मन न सिर्फ हल्के में लें बल्कि हुक्म शहर की इंतज़ामिया भी इस चीज़ को मामूली और हल्के में न ले, इसको सच्ची नज़र से न देखे। इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज बढ़ता रहेगा और ये एहतजाज अपने तमाम मुतालबे मनवा के रहेगा और हम न बंदूक से डरते हैं, न तीरो तबर से डरते हैं, पत्थर से डरना तो दूर की बात है। फिर हम नारा बुलंद करते हैं, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी हिफाजत करने वाले खुद इमाम मज़लूम हैं।
آپ کی حفاظت جناب عباس کریں گے، اس لیے کہ ان کے پرچم کی بھی کل اہانت کی گئی ہے۔ آپ کی حفاظت جناب علی اکبر کریں گے، آپ کی حفاظت جناب قاسم کریں گے، آپ کی حفاظت شہداء کربلا کریں گے۔ لہذا آپ حفاظت کے سلسلے میں بالکل بے پرواہ ہو جائیں اور اپنے فریضے کو انجام دیں۔ آپ کے علماء جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ مولانا ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں، مولانا فیروز صاحب قبلہ اور مولانا مہدی رضا صاحب قبلہ، مولانا ظاہر صاحب قبلہ اور مولانا ظہیر صاحب قبلہ، جو آپ ہی کے محلے میں قیام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ جب بھی کوئی قدم اٹھائیے، جب بھی کوئی اقدام کیجیے، اپنی طرف سے نہیں، امن و امان کے سلسلے میں کبھی کوئی ایسا پوائنٹ نہ دیجیے کہ ہم کو گناہگار کہا جائے، مجرم کہا جائے اور ہم کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ لہذا ہمیشہ علماء کے مشورے سے، علماء کے حکم سے جو باتیں پہلے سے طے ہوں اس کے مطابق اقدام کیجیے اور عمل کیجیے۔ اتحاد کا ثبوت پیش کیجیے۔ دوسی پورے میں کم سے کم مومنین اور پورے شہر بنارس میں سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو کے متحدہ طور پہ جب تک ہم اقدام نہیں کریں گے انشاءاللہ اس وقت تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ میں انشاءاللہ یہاں پہ غلط میں نے استعمال کیا، واپس لیتا ہوں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اس وقت جب ہم متحد ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی صورت سے ہم پھر نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، 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 یا علی، میں ابھی بات ختم کر رہا ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ کل کی مجلس اور آج کی مجلس احتجاج کے طور پہ ملتوی رکھی گئی ہے، لیکن ہم ذکر اہل بیت کے شرف سے نہ محروم رہے ہیں، نہ محروم ہیں اور نہ محروم رہیں گے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں جس کی برابر نماز جمعہ میں بھی تلاوت ہوتی رہی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی۔ اسے سنیے گا اور امام کی خدمت میں اپنے امام کو پکاریے گا، امام کی خدمت میں کل کے روز عاشورہ کا پرسہ بھی دیجیے گا اور اپنے دکھ درد کو بھی اپنے دل میں رکھ کے امام کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ آپ کے زمانے کا امام آپ کا مددگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔